آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جب ہم پوری جاں فشانی سے متفق ہو کر، اتفاق رکھ کر، اتحاد میں خدا سے التجا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، اپنی منت، اپنی التجا اور اپنی ریکویسٹ خدا کے سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو آسمان کا خدا اس فریاد کو جو ہمارے اتحاد کے باعث، جو ہمارے متفق ہونے کے باعث خدا کے سامنے جو عمل کیا جاتا ہے دعا کا، خدا اس دعا کو سن کر کس قدر جو ہے اپنے رحم کو جاری کرتا ہے اور ہم پر جو چھٹکارا ہے ہماری جو رہائی ہے، ہماری جو کوئی بھی مشکل ہے، خدا اس میں آسانی کس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے رسولوں کے اعمال اس کے 12 باب اور اس کی 4 آیت میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے سیکھیں گے۔ اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدلو جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آج کی جو آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی، جو آج خدا کا کلام ہم نے پڑھا، اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے اور اس سے جو آگے جو اس کے بعد جو معجزہ رونما ہوتا ہے، آج ہم اس پر توجہ فرمائیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کی مدد، خدا اپنے لوگوں کی رہائی، خدا اپنے لوگوں کا چھٹکارا کیسے بنتا ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو رسولوں کے اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا کے مقدس لوگوں نے، مقدس جانوں نے، خدا کے ایلچی، خدا کے وفادار شاگردوں نے خدا کے کلام کی تکمیل کرتے ہوئے، خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے، کونے کونے تک اس نبوت کی باتوں کو، خدا کے احکام کو، خدا کے آئین کو جب انہوں نے پھیلانے کے لیے جو اپنی کوشش شروع کی، تو ان کوششوں کے پیچھے ان جو تمام انہوں نے محنت کی، جو ان کی جد و جہد تھی، اس کے لیے انہیں کیا کیا پیش کرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا اور کن دکھوں سے وہ گزرے، یہ اعمال کی کتاب خدا کے مقدس لوگوں کا تمام طرح کا ذکر جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اور ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ تحریر کی گئی، تو آج ضروری ہے کہ ہم ان سے تربیت پائیں، سیکھیں اور خدا کے لیے ویسا ہی درد رکھیں جو درد اس نے ہمارے لیے سہا، جو مصیبتیں اس نے ہمارے لیے سہی، ہم اس کا پورا عرض جو ہے وہ خدا کو دے سکیں۔ اور ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حسد میں آ کر خدا کے مقدس لوگوں کو قید میں ڈالنے کی اس نے کوشش شروع کر دی، اور لکھا ہے کہ خدا کے جو رسول تھے، یعقوب رسول، اور خدا کے جو رسول شمعون یعنی پطرس جو تھے، ان کو پکڑا، قید میں ڈالا اور اعزار ثانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور یہ اتنے زیادہ دردناک بات تھی خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے، لیکن ان کی ہمت، ان کی کوشش اور ان کی مسیح میں قائم رہنے کے لیے آج بائبل مقدس ان کو مقدس لوگوں میں شمار کرتی اور ان کا ذکر کرتی ہے۔ لکھا ہے
जब याकूब को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद पतरस को कैद खाना में डाल दिया गया। और जब कैद खाना में डाला गया तो मेरे अजीज़ों, कलीसिया ना तो डरी है, ना खौफ ज़दा हुई है, ना उन्होंने मसीह के नाम से इनकार किया है, ना वो खुदा के इनकारी हुए हैं, और ना उन्होंने अपनी जानों की फ़िक्र की है, और ना वो अपने मालो सबाब की तरफ देखने के लिए दौड़े हैं, अपने घरानों की फ़िक्र की है। बल्कि बाइबल एक इतना खूबसूरत तरीका, एक इतनी अच्छी जो उनके काम की काविश थी, कोशिश थी, उसका जिक्र करती है कि जब पतरस को कैद खाना में डाला गया तो कलीसिया बदलो जान खुदा से दुआ करने लगी। और आज हम देखेंगे कि जब मुश्किलात आई, मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, तो हमें जो है वो क्या करना है, खुदा के सामने पूरे दिल से खुदा के साथ जुड़ने की, खुदा के साथ रफ़ाकत में, खुदा की हजूरी में अपनी मिन्नत रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस जो उन्होंने खुदा के हजूर में मुत्तफ़िक होकर इत्तेहाद से, इत्तफाक से खुदा के सामने इल्तिजा की है, तो मेरे अजीज़ों, आसमान के खुदा ने मुक़द्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी को अपने एक फरिश्ता के ज़रिए बचाया और रिहाई दी। और ये इतनी बड़ी जो है वो तब्दीली, इतना बड़ा मोजज़ा कैसे रूनमा हुआ, कलीसिया के इत्तेहाद और इत्तफाक और मुत्तफ़िक होकर दुआ करने की वजह से। और बाइबल बयान करती है कि जब तुम मुत्तफ़िक होकर, जब तुम इत्तफाक से, इत्तेहाद से कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। यानी कि खुदा की हजूरी, जब हम इत्तफाक में, जब हम इत्तेहाद में, जब हम 2 या 3 फ़र्दों की सूरत में या कलीसिया की सूरत में मुत्तफ़िक होकर खुदा से फरियाद करते हैं, तो आसमान का खुदा हमारी फरियादों को सुनता, जवाब देता और हमारे लिए मोजज़ात को रूनमा में लाता है। तो आज ज़रूरी है कि जैसे कलीसिया ने सख्त जो है वो इज़्ज़ा रसानी में, सख्त मुसाइब में, जब हालात मुखालिफ हैं, जब फ़ौजी उन्हें घेरे हुए हैं, जब सिपाही उनको कैद खाना में डाले हुए हैं, तो आज ज़रूरी है कि हम खुदा के मुक़द्दस लोग होते हुए इस बात की परख, इस बात की जांच करें कि खुदा हमें कैसे मिल सकता है, हम अपनी मुसीबत से रिहाई कैसे पा सकते हैं। लिखा है कि 4 सिपाहियों की निगहबानी में 4 पहरों में मुक़द्दस पतरस को कैद में डाला गया। इतनी सख्त निगरानी, इतना सख्त पहरा, लेकिन जब खुदा काम करता है अपने फरिश्तों को भेजकर, तो तब कोई भी सिपाही, कोई भी सख्त पहरा, कोई भी तलवार, कोई भी हथियार खुदा के लोगों के खिलाफ काम नहीं करता। तो आज ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ पूरे दिल से चलें, मसाइब को, अपनी मुश्किलात को बड़ा नहीं बनाएं, अपने जो हमारी दुनियादारी की फ़िक्रें हैं हम उनमें मगन ना हों, बल्कि अपने खुदा को ढूंढें, अपने खुदा की तलाश करें और उसमें रहकर खुदा से सब कुछ पाएं। आज देखा जाए तो मुक़द्दस पतरस जो कलीसिया के रहनुमा थे, जो लीडर थे, जो खुदा का पैगाम सुनाने में अपनी कलीसिया के साथ जुड़े थे, वही कलीसिया जब उनका रहनुमा मुसीबत में था, जब उनका लीडर जो उनको सिखाता था, खुदा की बातें बताता था, वो मुसीबत में था, तो कैसे कलीसिया ने उस मुसीबत का छुटकारा पाया, उस मुसीबत से रिहाई पाई और मुक़द्दस पतरस के लिए बदलो जान दुआ की, तो कैसे खुदा ने मोजज़ा किया कि अपने फरिश्ता को भेजकर मुक़द्दस पतरस को रिहाई दी। तो आज ज़रूरी है कि हम खुदा के हजूर में एक अच्छे जो है वो लीडर बनकर, एक अच्छी कलीसिया बनकर खुदा के साथ जुड़े, रफ़ाकत में रहें, ताकि खुदा हमारे लिए भी आसमान से फरिश्तों को भेजे, ताकि वो हमें रिहाई दे सके, हमारे लिए मुदाखलत करें, तमाम तरह के मसाइब से हमें छुटकारा दें। तो आज ज़रूरी है कि हम ऐसे इत्तेहाद करने वाले, इत्तफाक करने वाले और मुत्तफ़िक होकर खुदा से फरियाद करने वाले बने। जब हम
नैनवा के लोगों को देखते हैं, जब उन पर मुसीबत का ऐलान कर दिया गया, मुनादी कर दी गई कि नैनवा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, सब लोग जो हैं वो अपने बुरे कामों में, बुराई में मुलविस है, खुदा की तरफ रजू नहीं लाते। तो तब नैनवा के लोगों ने जब मुक़द्दस यूना की मुनादी पर कान धरा तो उन्होंने मुत्तफिक होकर इत्तेहाद से, इत्तफाक से खुदा के हुजूर में आजिज़ी की, इनकसारी की, झुके, दुआ की, रोज़ा रखा और अपने आप को खाकसार बनाया। तब आसमान के खुदा ने, जो खुदा उनके बारे में फैसला कर चुका था कि नैनवा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, वही नैनवा के लोग रिहाई पाने वाले बने। अपने इत्तेफाक की वजह से, आजिज़ी दिखाने की वजह से उन्होंने रिहाई पाई। तो आज ज़रूरी है कि जो ज़िंदगियाँ मुश्किलात में हैं, जितनी ज़िंदगियों में, जितने घरानों में मसाइब हैं, तो आज ज़रूरी है कि हम अपने प्यारों के लिए उन मसाइब में, उन तकलीफ़ों में जो हमारे जो अज़ीज़ हैं खड़े हैं, उनके लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद रखते हुए झुक कर खुदा के सामने मिन्नत करके, दुआ करके उनके छुटकारे का बाइस बने। तो आसमान का खुदा जो कदीम अयाम में अपने लोगों की फ़िक्र करता नज़र आया, अपने लोगों को बचाता नज़र आया, मेरा ईमान है कि वो खुदा आज भी अपने लोगों के लिए दर्द रखता, अपने लोगों की फ़िक्र करता और अपने लोगों को बचाता और छड़ाता है। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।